क्वेश्चन नंबर 46 मैच द कॉलम का है, इसमें देखेंगे अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट ए इज मैच्ड विद लिस्ट बी, दिस इज क्यूमीन एंड व्हेन क्यूमीन इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन देन इट गिव्स peroxide and after hydrolysis it gives phenol, so A will be second. In case of B, carboxylic acid is converted into alcohol, so first of all it is converted into ester by reaction of acid with alcohol and after reduction it gives ethanol, so answer of B will be third. Next question, this C is 1 degree alcohol which is converted into 2 degree alcohol. So first of all 1 degree alcohol is dehydrated with concentrated H2SO4 which gives alkene, and after addition of H2O it follows Markovnikov and gives 2 degree alcohol. So C has answer fourth. And D, benzene is converted into phenol, first of all oleum, sulfonation, and after reaction with NaOH it gives sodium phenoxide which gives phenol in the presence of H plus. So D has first option. So answer A second, B third, A second, B third, C fourth and D first. Answer will be fourth. Next question is question number 47. Next question is question 47. Major product. First of all chlorination, after chlorination it gives CH3, CH2, Cl, and when treated with ammonia it gives CH3, CH2, NH2, and when it is treated with NaNO2 and HCl and after hydrolysis it gives CH3, CH2OH. So answer will be second. Next question is question number 48. In qualitative analysis of Bi plus 3 is detected by appearance of precipitate of BiOH whole twice OH, calculate pH. So we know that it is value of Ksp and Ksp is 4 into 10 to the power minus 10, and this is AB type salt. The solubility of BiO is also S, OH is also S, so Ksp will be equals to S square and value of S square will be 4 into 10 to the power minus 10, so S will be 2 into 10 to the power minus 5, and S is the concentration of OH minus, so we can say that concentration of OH minus is 2 into 10 to the power minus 5. When we take its antilog, it will minus log 2 log 2 into 10 to the power minus 5, it will be 10 to the power minus 5 comes forward and gives plus 5 minus log 2, 5 minus value of log 2 is 0.3010, so it is 4.7, but this is POH, and question asks about pH. So pH will be 14 minus 4.7, it will gives 9.3, so answer will be third. And next question is question number 49. When 1 decimeter cube of CO2 gas is passed or hot carbon, so equation will be CO2 gas when passed on carbon solid, it gives 2 mole of CO gas. Stoichiometry says that 1 mole of CO2 gives 2 mole of CO. So in case of volume, 1 liter of CO2 gives 2 liter of CO. So when x liter or x decimeter cube of CO2 will disappear, then it gives 2x of CO. And then total volume is 1 minus x plus 2x equals 2. Total volume is 1.4 decimeter cube. So it is 1.4. So x equals to 0.4. When put the value of x here, then it gives 0.8 decimeter cube of CO and 1 minus 0.4, 0.6 of CO2. So answer will be CO 0.8 and CO2 0.6. Answer will be third. Next question is question number 50. Again this is the match the column. Match list first with list second. Read it.
n की वैल्यू है 2, L is 1, so it will be 2s, and 2s is 2p. L value 1, so it is 2p, and 2p is second, so A is second. B, n की वैल्यू है 4, L की वैल्यू 0, so it gives 4s, and 4s is third, so B has third. C, 5, n की वैल्यू 5, L की वैल्यू 3, so it gives 5f, and 3 and 2, and 3L2, 3D, so first and it will fourth. A second, B third, A second, B third, C fourth, D first, so answer will be first. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेन चेक कर लीजिए, ए सेकंड है, बी थर्ड है. अब ए सेकंड बी थर्ड देखिए बाकी ऑप्शन में भी था, बट सी चेक करो, सी क्या है फोर्थ, एंड हियर इज सी इज 1, सो सी फोर्थ एंड डी फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एंड व्हेन 6Cl2 is treated with N-hydroCl3 in dark and CO2, it gives C6Cl6. And when it is treated with 3Cl2 in the presence of H nu or ultraviolet rays, it gives C6H6 and Cl6. It is also known as benzene hexachloride, and this is perchlorobenzene. So number of chlorine atom in X and Y is 6 and 6. So answer will be 6 and 6, second option. Next question is question number 52. In the following reaction sequence, X and Z respectively are. So check it. When alcohol is treated with PCl5, it gives CH3, CH2, Cl and POCl3. So X will be POCl3. X will be POCl3. There are two options. Then again, when this CH3, CH2, Cl is treated with alcoholic KOH, it follows E2 reaction and shows dehydrohalogenation and gives 1 propene. अब इसमें देखेंगे कि इसमें HBr का एडिशन हो रहा है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, so it follows anti-Marconi, then it gives CH3, CH2, CH2Br. So Z is 1 bromopropane. So answer will be fourth. Next question is question number 53. Again match the column first with second. List first is transition metal or compound V2O5, vanadium pentaoxide. Vanadium pentaoxide is a oxidizing agent which oxidizes SO2 to SO3, and it is used in the preparation of H2SO4. So A has third option. B, iron. Iron is the supporter in the formation of ammonia by the help of N2 and H2. So B has first. C, PDCl2. PDCl2 oxidize ethine to ethanol. So C has fourth option. And nickel complex is used in the polymerization of alkyne to cyclooctatetraene. So it is used in preparation of polymerization of alkyne. So D has second option. So कंपेयर करेंगे, A में थर्ड है, B में फर्स्ट, B फर्स्ट, C फोर्थ एंड D सेकंड. आंसर विल बी फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ClF3. अब देखिए ClF3 में सेंट्रल एटम है क्लोरीन. क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and there are 3 fluorine which are bonded with single bond, and chlorine has 2 lone pair. So chlorine has 2 lone pair, ये ऑप्शन भी सही है. 2 lone pair, ये ऑप्शन भी सही है. 2 lone pair, ये ऑप्शन भी सही है. 3 lone pair, तो ये तो गलत हो गया. नाउ हमें इसकी ज्योमेट्री और शेप पता करना है, तो सबसे पहले हमें इसका हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा. हाइब्रिडेशन देखेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5 sp3d. sp3d हाइब्रिडेशन विद 2 लोन पेयर. सो एक फ्लोरीन यहां होगा, एक फ्लोरीन यहां होगा, एक फ्लोरीन यहां होगा, एंड देयर आर 2 लोन पेयर.
but as we know that lone pair repulsion is greater than lone pair bond pair repulsion, so this will get distorted. So this is distorted T shape, बट ऐसा कोई है नहीं इसमें, देखो डिस्टोर्टेड वर्ड नहीं लिखा, कोई बात नहीं, टी शेप ज्योमेट्री है, जबकि यहाँ पे ट्राइगोनल पिरामिडल, तो ये गलत हो गया फर्स्ट। यहाँ है प्लेनर ट्राइगोनल, अगेन गलत, फोर्थ गलत ऑलरेडी कर चुके अपन, तो आंसर विल बी सेकंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। 55 इज द क्वेश्चन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, एंड इसमें पूछा कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द हाफ सेल गिवन। अब हमें कंफ्यूजन ये होता है यहाँ पे कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहिए। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है ना, हमें उसका कैलकुलेट कर देना है। और यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है आप देखेंगे H2 कन्वर्ट हो रहा है 2H प्लस में, प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस H2 कन्वर्टेड इनटू 2H प्लस, तो ये रिएक्शन किसकी है, ऑक्सीडेशन की। तो इट्स ओके, अपने को जो इक्वेशन गिवन है उसी के लिए अपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। हम नेक्स्ट इक्वेशन जानते हैं, इक्वल होता है E नोट माइनस 0.0591 अपॉन n log, इसमें देखिए प्रोडक्ट साइड है H प्लस, तो H प्लस का कंसेंट्रेशन स्क्वायर एंड प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट इक्वेशन में हम प्रेशर यूज कर सकते हैं एट द प्लेस ऑफ कंसेंट्रेशन फॉर गैसेज। तो ई नोट की वैल्यू है यहाँ पे 0 वोल्टेज, तो 0 माइनस 0.0591 अपॉन n, n है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इज 2, अगेन log H प्लस की कंसेंट्रेशन है 0.02, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, इट इज माइनस 0.0591 अपॉन 2 log, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। हम इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस, देखिए माइनस 4 आगे आ जाएगा, प्लस log 2 की वैल्यू थी 0.3010, so it gives minus 3.7 into this is 0.059 upon 2। अब इसको एग्जैक्ट करेंगे तो 0.029 आएगा, बट हम इसको 0.03 भी ले सकते हैं, सो माइनस 0.03 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा प्लस 0.1। अब एग्जैक्ट सोल्व नहीं किया अपन ने इसको, क्योंकि 0.029 की जगह 0.3 लिया है, तो ये 1.1 आ रहा है, 0.29 लेंगे तो इससे थोड़ा सा कम। तो अब देखेंगे 0.11 दो ऑप्शन में है, इसमें एक में माइनस है और एक में प्लस है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, प्लस वाला, तो आंसर विल बी फर्स्ट। This is question number 56. Match list first with the list second. List first is order of reaction. Now zero order reaction. Zero order reaction unit of reaction is mole liter inverse second inverse. Now first order reaction. First order reaction is second inverse. Second order reaction, it's mole inverse liter second inverse, and third order reaction is mole minus 2 and liter is square second inverse. Now answer is A4, B3, A4, B3, C1 and D2. Therefore answer will be the third one. The calculated spin only magnetic moment of Ti2 plus. It's a 3D2. 3D2 means it has only 2 unpaired electrons, and for 2 unpaired electrons we have to use mu equals to under root Nn plus 2 Bohr's magneton. Therefore its answer will be 2 into 2 plus 2 is equals to under root 8 equal to 2.84 Bohr's magneton. This is the answer of 57 number question. Now next one, two product X and Y are formed. Now here it is CH3Cl, and here we are having anhydrous AlCl3. Anhydrous AlCl3 will give FCR reaction. Therefore W will be toluene, and now toluene is nitrated so that it will give us ortho and para products which are having difference in boiling point. Therefore, for those compounds which have difference in boiling point, they can be purified by fractional distillation. So here the best answer will be the fractional distillation.
59. A bulb is rated at 150 watt, and 8% energy is emitted only. So 8% of 150 is equals to 12 joule. 12 joule. Now number of quanta equals to 12 divided by 4.42 into 10 raised to minus 19. Therefore, the correct answer will be 2.71 into 10 raised to 19. Question number 60. In this question, test tube containing a salt, and we are adding few drops of H2SO4. Now it is giving vinegar like smell of vinegar, and we know smell of vinegar is observed in CH3COOH, and therefore the salt must contain acetate ion. It will contain acetate ion. 61. Select the reagents that reduces nitrites to primary amine. We want to convert RCN into RCH2NH2. We can use LiAlH4 along with H2, it will give RCN into RCH2NH2. SNHCl we cannot use because it gives aldehyde, RCH double bond NH, which gives aldehyde. We can use H2Ni, we can use sodium amalgam and ethyl alcohol, which is a Mendius reduction. We cannot use Br2 and aqueous NaOH. Therefore, correct answer is A, C and D only. Identify the incorrect statement for the following. Carbon has ability to form p-pi multiple bonds. बिल्कुल सही बात है. It's found in alkene, it's found in alkyne. ECl3. Whenever we are having boron as E, then it cannot undergo dimerization. But whenever we are having AlCl3, it dimerizes to give Al2Cl6. Now oxygen exhibit only -2 is written here. Oxygen can show -2, -1, -half, etc. Therefore, this statement is absolutely incorrect. The order of catenation property on moving down the group decreases, and germanium tin have approximately same catenation property. This statement is true. +3 oxidation state is common state for the lanthanides, but for cerium atomic number is 58. This can show +4 oxidation state. Whenever we are going to observe electronic configuration of 58, it is 6s2, 4f1 and 5d1. In Ce4+, it is going to acquire 6s0, 4f0, 5d0. But it is not inert configuration of radon, it is inert configuration of xenon, means 54. So after losing one more electron, it acquires 4f0. This one is the right statement, not the first one, because here we need xenon. During Lassane's test is used to convert, it is the fact, you have to remember this, that ionic covalent compounds are converted into ionic, because organic compounds have elements with the help of covalent bond, and now these are heated with the sodium to give ionic compounds. Next question is the number of hydrogen atoms present in 5.4 gram of urea is 5.4 gram divided by 60 is the molar mass of urea multiplied with 6.02 into 10 raised to 23 is the number of molecules. Now we want to calculate number of hydrogen atoms only, and urea has only 4 hydrogen atoms, which is represented by its formula. Therefore, its total number of atoms which are present are, these are 2.168 into 10 raised to 23. This is the correct answer for this one. Let's start discussion from code 12, chemistry. The pair of molecule that are metamer among the following. तो metamer यहाँ पे अगर हम चेक करें, पहला ऑप्शन, the first option CH3 CH2 CH2OH and CH3 CHOH CH3. बेटा ये पोजीशन आइसोमर कहा जाएगा.
This is the position isomer, right? Okay. And the next one is CH3O, CH2, CH2, CH3 and CH3, CH2O, CH2, CH3. In this case, compound is divided into two equal and अनइक्वल हाफ्स। तो बेटा मेटामर के लिए अगर हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है, वो है सेकेंड। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ने कंपाउंड को दो इक्वल और अनइक्वल हाफ में डिवाइड किया, राइट। अगर हम जाएंगे बेटा नेक्स्ट केस थर्ड वाले पर, तो ये हमारा है फंक्शनल आइसोमर, राइट। ये फंक्शनल आइसोमर है बच्चा हमारा। और अगर हम जाते हैं फोर्थ के केस में तो हम दिखाई पड़ रहा है कि ये चेन आइसोमर हो जाएगा। ओके, वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो ही इस टाइप के सवाल आए तो आपको क्या है कि अलर्ट हो जाना है कि हमें करेक्ट ढूंढना है कि इनकरेक्ट। अक्सर होता है कि हम करेक्ट पर अधिक फोकस करते हैं और इसे मिस कर देते हैं, तो यहाँ पर ये नहीं करना है, हमें यहाँ पे इनकरेक्ट खोजना है। क्लियर है? इनकरेक्ट हमें खोजना है। और इनकरेक्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर C2H5 थ्राइस P और AsC6H5 थ्राइस फॉर्म डी पाई बॉन्ड विथ ट्रांजिशन मेटल, जो कि एकदम परफेक्ट NCERT की लाइन है, राइट। नाइट्रोजन कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। थोड़ा हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में तो डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है तो क्या वो डी पाई बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा, डी पाई बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा? तो नहीं। तो हमारा बेटा आंसर क्या आता है? सेकेंड, राइट। नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। बिल्कुल, जो छोटे साइज के एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में पी पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तभी वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन का केस और ऑक्सीजन का केस। फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी। बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर है ये। ओके, वी गो फॉर द नेक्स्ट वन बेटा। Phenolphthalein is used as an indicator for the titration of NaOH solution, sodium hydroxide, against a standard solution of oxalic acid. Color change that is observed at an alkaline pH close to the equivalence point. तो बेटा हमें पता है कि फेनोफ्थलीन एक वीक एसिडिक इंडिकेटर है जो कि कलर शो करता है जब ये क्या होगा बच्चा? आयोनाइज होगा। तो H+ और pH- ये फेनोफ्थलीन के लिए एक शॉर्ट टर्म यूज करते हैं। और बेटा pH- का कलर कैसा है बताओ? पिंक है। यानी कि हमें यहाँ पर अगर हम ऑप्शन जाएंगे पिंकिश रेड टू येलो, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। येलो टू पिंकिश रेड नहीं, कलरलेस टू पिंक हमें लगता है कि ये ज़्यादा सुटेबल है कि पहले जब मीडियम एसिडिक होगा तो HPH कहीं न कहीं पर टूटेगा नहीं, तो कलर नहीं आएगा। और जो ही मीडियम इक्विवेलेंस पॉइंट पे जाएगा और स्लाइटली बेसिक होगा तो आपको पिंक कलर ऑब्जर्व होगा, राइट बच्चा। वी गो फॉर द नेक्स्ट। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। आप आसानी से मैच कर सकते हैं। अगर हम C2H4 की बात करें तो C2H4 ये रहा हमारे पास। मुझे लगता है इससे सरल तो कोई सवाल ही केमिस्ट्री में नहीं होगा। और हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 1 सिग्मा 2 3 4 और एक यहाँ पे 5 सिग्मा प्लस 1 पाई। तो बेटा 5 सिग्मा प्लस 1 पाई फोर्थ में मुझे नजर आ रहा है। तो बेटा हम ए के लिए फोर्थ ऑप्शन चूज करेंगे। और संयोग से देखिए कितनी अच्छी बात है कि आपका टाइम बच रहा है यहाँ पर कि फोर्थ ऑप्शन ही पहले मैच कर गया है। और चूंकि हमने ये सही से निकाला हुआ है तो हमें और मैच करने की जरूरत नहीं है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ेंगे। बट इफ यू वांट टू गो फॉर द नेक्स्ट वन C2H4, तो बेटा C2H4 अगेन लिख दिया गया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये C2H2 है, तो बच्चा हम यहाँ पे C2H2 ले लेंगे। चलो C2H2 का केस यहाँ पर देखेंगे 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा और 2 पाई का केस है बेटा। 3 सिग्मा और 2 पाई का केस है। जल्दबाजी में कभी थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती है प्रिंटिंग में, माइंड नहीं करना है आपको। सेकेंड C2H2 3 सिग्मा 2 पाई।
बी के लिए 1 लिया गया है और बी के लिए 1 परफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। आप चाहे तो एक और मैच करवा लेते हैं। चलिए CH4 की बात करते हैं। तो बेटा CH4 में तो केवल 4 सिग्मा ही होंगे, तो CH4 के लिए C का 3 ले लेंगे। C का 3 हमारे पास अवेलेबल है। अमोनिया की बात कर लें बेटा, तो अमोनिया में अपन के पास क्या है, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, और ये कहीं सेकेंड पर अवेलेबल है, जो हमारा सारा प्रॉपर मैच होता है फर्स्ट केस में। तो इट्स वेरी इजी एंड क्वाइट गुड क्वेश्चन कि आप इसे तो कम से कम गलत ना ही करें। ओके, वी गो फॉर द नेक्स्ट वन बच्चा। एट अ सर्टेन टेम्परेचर T दिया हुआ है, ड्यूरिंग अ प्रोसेस 500 जूल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। ओके, तो एक Q की वैल्यू है, हीट की वैल्यू है, एब्जॉर्ब किया गया है बच्चा, तो हम इसको क्या लेंगे बताओ, पॉजिटिव। This energy is absorbed, so we take it positive, and work of 200 joule is done by the system. By the system means it will be taken negative. तो हमें यहाँ पे चाहिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी। द वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स में इससे सरल कोई सवाल तो बन ही नहीं सकता है भाई। मुझे तो मतलब लिटरली ये देख करके थोड़ा सा सरप्राइज ही हुआ कि भाई थर्मोडायनेमिक्स में बच्चे इतना अफर्ट करते हैं और इतना इजी क्वेश्चन बताइए। तो हम यहाँ पे डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W ले सकते हैं बेटा। Q की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे, कितना है 500, और बेटा W नेगेटिव पुट करेंगे, कितना है बच्चा हमारा 200। तो बेटा -200, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 300 जूल का आंसर आ जाएगा, जो हमारे पास सेकेंड पर अवेलेबल है। क्वाइट ईजी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Methane react with steam at 1273 Kelvin in the presence of nickel catalyst. Very interesting सवाल। आपको ये सवाल NCERT में भी मिलेगा और आपको ये चीज़ जानते रहना है। हम जब मीथेन को बच्चा स्टीम से रिएक्ट करवाते हैं, स्टीम को मैंने यहाँ वेपर लिख दिया है, टेम्परेचर है 1273 केल्विन का, राइट। और कैटलिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे निकल कैटलिस्ट है, टेम्परेचर वेरी हाई, और यहाँ पर बनता है हमें CO प्लस 3H2, जिसे हम सिंथेसिस गैस भी कहते हैं, या हम इसे वाटर गैस भी कहते हैं। तो बेटा हमारे लिए जो ऑप्शन अवेलेबल दिखाई पड़ रहा है, जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, वो CO एंड H2 का है, राइट। ओके, मुझे अगर आपने NCERT सही से रीड की होगी और जितने क्वेश्चन हम लोगों ने इस बार 45 क्वेश्चन ऑब्जर्व किए, एग्जाम में देखा, तो हमें लगा कि हाँ NCERT से कहीं बाहर कुछ नहीं है, राइट बच्चा। वी गो फॉर द नेक्स्ट वन। कोई कंपाउंड है P, उसका हमें यहाँ पर फार्मूला भी दिया गया है, गिव्स अ रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट विथ 2,4-DNP। ओके ग्रेट, आइए पढ़ते हैं आगे। एंड इट डज नॉट रिड्यूस फेहलिंग रीजेंट। अगर फेहलिंग रीजेंट नहीं करता है तो इसका मतलब कि ये कीटोन हो सकता है। ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड, P गिव्स एंड एरोमेटिक प्रोडक्ट Q that produces effervescence on treating with aqueous sodium bicarbonate. Okay, here we just observing the situation कि हमारे पास P था एंड P को हमने यहाँ पे 2,4-DNP यूज़ किया, और 2,4-DNP इज टेस्ट फॉर CO। अगर ये पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है तो कंपाउंड CO का है, वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, एंड हियर इट इज क्लियर दैट इट डज नॉट रिड्यूसेस फेहलिंग रीजेंट। तो ये क्या होगा बच्चा, ये कीटोन होगा। तो P के लिए हम ये दो ऑप्शन पहले से ही इनको प्रणाम कर लेंगे, पहले से इसको छोड़ देंगे, एंड वी गो फॉर द 1 एंड 2। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एक वीक बेसिक प्रोडक्ट है, तो कंपाउंड को एसिडिक होना पड़ेगा। ओके, ऑन ट्रीटिंग विथ एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इन दोनों में अगर मैं एक एसिडिक कंपाउंड चूज करना चाहूँ तो क्या Q बेटर लग रहा है, Q हमें बेटर लग रहा है, और सेकेंड ऑप्शन आसानी से ले लिया जाएगा। ओके, मुझे उम्मीद है ये थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और जिन बच्चों ने ठीक से मतलब थोड़ा सा बेसिक्स पढ़े हुए हैं उनका भी ये पक्का सही होगा। ओके, वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा। A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. Mass of copper deposited. Okay, हम पहले यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमें कॉपर को बेटा डिपॉजिट करना है, इफ यू वांट टू डिपॉजिट कॉपर, तो हम यहाँ पे इस प्रकार से इक्वेशन लेंगे।
कॉपर और इसको हम देंगे 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 फैरड इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। वी हियर सी कि 63 ग्राम ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड बाय 2 फैरड। अब आइए देखते हैं कि हमारे पास जो करंट अवेलेबल है आखिर वो करंट कितना है। ठीक है, ओके बेटा, आइए हम करंट देखते हैं। तो हमें करंट जो यहाँ पर दिया गया है Q की वैल्यू मैं फैरड में ही निकालना चाहता हूँ। तो पहले तो हम IT करेंगे। I की वैल्यू हमारे पास करंट है 1.5 10 मिनट्स के लिए और इसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे और डिवाइड बाई हम यहाँ करेंगे क्या बताइए, 1 फैरड की वैल्यू 96487 और ये वैल्यू हमारे पास जो आने वाली है वो 0.0093 फैरड के आसपास आती है। अब हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट अवेलेबल है और हमारे पास जो करंट अवेलेबल है फैरड में वो ये है। तो हम यहाँ पर देखें कि 2 फैरड डिपॉजिट करता है बच्चा 63 ग्राम, तो 0.0093 फैरड कितना डिपॉजिट करेगा, यानी कि 63 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.0093 और इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चा। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, मैं सॉल्व कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना मुझे करना पड़ता, आप भी करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो 0.2938 के आसपास हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके बेटा, वी गो फॉर द नेक्स्ट वन। फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू थैलिन डाई टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपने जरूर पढ़ा होगा फिनॉल के केस में कि हम जब फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करते हैं तो हमें क्या बनता है, हमें बनता है फिनोल्फ्थलीन। यानी कि अगर हम यहाँ पर बताएं आपको तो ये कंपाउंड है हमारा थैलिक एनहाइड्राइड और इसको हम ट्रीट करते हैं फिनॉल से। ये रहा हमारा फिनॉल, 2 मॉलिक्यूल फिनॉल के ले लिए गए हैं और इस प्रकार से यहाँ से H टेस्ट में चला जाएगा और हमें फिनोल्फ्थलीन मिल जाएगा, फिनोल्फ्थलीन। तो बेटा इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो क्या है बच्चा, फिनॉलिक कंपाउंड्स, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप कभी पढ़े होंगे तो टीचर ने आपको बताया होगा कि हाँ ये महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है और ये अच्छा सवाल है। ये लिटरली बताऊं आज के टेस्ट का बेस्ट क्वेश्चन है। द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA RNA, बहुत ही सरल, चूंकि बच्चों को बायो पसंद होता है, दे लिटरली लाइक बायोलॉजी जो कि नीट के में अपियर होते हैं, तो ये सवाल तो आपका गलत हो ही नहीं सकता। यू कॉन्ट टेक दिस एनीथिंग रॉन्ग अबाउट दिस। तो आइए देखते हैं बेटा, DNA पोसेस अ सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स, पहले ही गलत हो गया। RNA पोसेस अ सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स, बिल्कुल सही बात है। एंड कंटेन थायमिन, तो हमें लगता है थायमिन की जगह पे यूरिसिल प्रिफर्ड होता। DNA पोसेस अ डबल स्ट्रैंड हेलिक्स, बिल्कुल सही बात है। एंड कंटेन्स थायमिन, बिल्कुल थायमिन सही बात है। तो बेटा ये थर्ड मुझे पक्का सही लग रहा है। हम फोर्थ भी एक बार चेक कर लेते हैं। RNA पोसेस डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड कंटेन्स यूरिसिल, तो यहाँ पर यूरिसिल तक तो बात आ गई सही है, लेकिन यहाँ डबल स्ट्रैंड फिर से क्या हो जाएगा, गलत। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बेस्ट है। ओके बच्चा, क्लियर है। वी गो फॉर द नेक्स्ट वन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, जिसका मोलर मास 60 दे दिया गया है। कितना आसान बनाया गया है सवाल, लिटरली मतलब इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन सोल्यूशन इज 0.556 मोलल। तो बेटा मोलल के लिए हमें मोलैलिटी के लिए पता है, अगर हमें मोलैलिटी चाहिए तो हमें नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई सॉल्वेंट इन केजी लेना पड़ेगा। तो बेटा आइए देख लेते हैं। तो बेटा 2.5 डिवाइडेड बाई 60 क्या मोल हो गया, और 75 ग्राम बेंजीन है हमारे पास। 75 ग्राम बेंजीन, 75 ग्राम बेंजीन को हम चेंज करेंगे किस में बच्चा, किलोग्राम में चेंज करेंगे। इनटू क्या कर देंगे 10⁻³ और हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद वी फाइंड 0.556 मोलर, 0.556 मोलर। तो बेटा ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, तो हमारा एक स्टेटमेंट सही हो चुका है, राइट। वी गो फॉर द नेक्स्ट वन। द मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन, मोलैरिटी कह रहा है
containing 5 ग्राम NaOH, जिसका मोलर मास भी दे दिया गया है, ये तो मतलब गजब ही किया गया है बिल्कुल, in 450 ml ऑफ सोल्यूशन इस 0.278, यहाँ पे हम एक अपनी ओर से डेसिमल डोनेट कर देते हैं. लेट्स सी, अगर हम बेटा मोलैरिटी निकालेंगे तो हमें चाहिए होगा नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, किसमें बच्चा, लीटर में चाहिए होगा. तो आओ नंबर ऑफ मोल पुट करते हैं. तो बेटा 5 डिवाइडेड बाय 40 नंबर ऑफ मोल हमारे पास आ चुका है. 450 ml है जिसे हमें किसमें चेंज करना होगा बच्चा, लीटर में चेंज करना होगा. और हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 0.278 मोलर आ जाएगा. लिटरली मैंने किया भी है, आप भी किए होंगे और आपने सही किया होगा. तो बेटा बी भी हमारा क्या हो गया है, सही हो गया है. बी इज ऑल्सो करेक्ट. वी गो फॉर द सी ऑप्शन. लेट्स सी हियर, एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर. सुनने में मतलब अजीब लग रहा है कि भाई ठंड में क्यों ही रहेगा कंफर्टेबल, ठंड में तो मतलब गर्माहट चाहिए या कुछ भी इस टाइप से. बट अगर हम यहाँ पे सोचें बेटा तो कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होगा. बिकॉज जैसे जैसे आप टेम्परेचर रेज करोगे पानी में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी. तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कोल्ड वाटर में ज़्यादा है, इसलिए जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं वो कोल्ड वाटर में खुश रहते हैं. ठीक है, तो वी गो फॉर द सी ऑल्सो. सी भी सही है. अब हमारा केवल एक स्टेटमेंट बचा हुआ है, वो क्या है बच्चा, डी. आइए देख लेते हैं. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन प्रेशर. तो प्रेशर आपको पता होगा, प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो गैसों की सॉल्युबिलिटी क्या होती है लिक्विड में बच्चा, बढ़ती है. और यहाँ क्या लिखा हुआ है बताइए, डिक्रीज लिखा हुआ है. तो हमें लगता है कि ये अच्छा नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसे डिस्कार्ड करते हैं. अब तक हमारा ए बी सी सही हो चुका है, डी सही नहीं है. और ई पर चलते हैं बच्चा. और ई पर हम नहीं भी चल सकते हैं बिकॉज हमारा ए बी सी सही हो चुका है, ऑप्शन 3 से ऊपर के नहीं है, तो हम ए बी सी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं. बट हम चलो अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सारे ऑप्शन अवेलेबल को, तो वी हैव टू डिस्कस दिस ऑल्सो. फॉर अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ ए एंड बी द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड बी आर Na एंड Nb. वेरी गुड. रेस्पेक्टिवली द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी Na अपॉन Na प्लस Nb. ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर B का मोल लेना बनता था. तो बेटा ये भी गलत हो गया, D भी गलत, E भी गलत. तो मैंने पहले ही कहा था कि हमें किस पर चलना चाहिए बताइए, A B C, right? We go for the next one. Mixture of chloroform and acetone form a solution with negative deviation. ये हमें पता है, इतना तो हम पढ़े हुए हैं बिल्कुल. ये क्यों होता है, ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव डेविएशन है तो हमारे पास जो दो लिक्विड्स मिक्स किए गए हैं ए एंड बी, उनके बीच बॉन्डिंग बढ़ जाएगी. तो हमें इस प्रकार के ऑप्शन यहाँ पे तलाश करने पड़ेंगे. वी हैव टू फाइंड द ऑप्शंस वेयर ए एंड बी गेट इंटरेक्टेड, राइट. तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म सुनने में अच्छा लग रहा है और ऐसा होता भी है. क्लोरोफॉर्म अगर हम देखें तो बेटा ये क्लोरोफॉर्म है और इसके हाइड्रोजन में 3 क्लोरीन के कारण यहाँ पर अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस प्रोड्यूस होता है. और यहाँ पे हमारे पास एसीटोन अवेलेबल है और इसके बीच में क्या है बच्चा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है. तो ये एक अच्छा ऑप्शन है. मैं देखता हूं कहीं हमारे पास कोई और कंट्रोवर्शियल ऑप्शन तो नहीं अवेलेबल है. तो इंक्रीज इन एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ईच कंपोनेंट, ये तो बिल्कुल गलत है. ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए लिया जा सकता है. एंड वी गो फॉर द नेक्स्ट वन. स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल एंड दोज बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मॉलिक्यूल. स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड दोज बिटवीन क्लोरोफॉर्म फिर से लिख दिया गया है. मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा क्या है यहाँ पर एसीटोन कर देना बेटर होगा. बिटवीन क्लोरोफॉर्म या एसीटोन आगे लिखा हुआ है. ये भी ऑप्शन एक तरीके से मैं इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये बेटर ऑप्शन है. तो हमें फर्स्ट पे जाना होगा और रिपल्सिव फोर्सेस तो हो नहीं सकता, राइट. सी ऑप्शन भी अपने आप में वही बात कहना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे रीजन जो दिया गया है वो बेटर दिया गया है. क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज क्लियर, राइट. At 298 Kelvin, a certain buffer solution contains equal concentration of X minus and HX. Kb for X minus is 10⁻⁻10. What is the pH of this buffer solution?
ओके ठीक है बेटा, तो हमारे पास HX दिया गया है, तो HX की वैल्यू हम यहाँ पे इस एसिड के लिए Ka निकाल लेंगे बच्चा। Ka की वैल्यू आएगी KW अपान KB, क्योंकि ये कॉन्जुगेट एसिड है X माइनस का। ये क्या है? X माइनस का कॉन्जुगेट एसिड है। तो बेटा KW की वैल्यू 10 पावर माइनस 14 डिवाइड बाई KB की वैल्यू 10 पावर माइनस 10 दी गई है। 10 पावर माइनस 10 दी गई है, तो हमारे पास Ka की वैल्यू क्या है बच्चा? हमारे पास Ka की वैल्यू क्या है? 10 पावर माइनस 4, राइट। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपान एसिड। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन सेम है, तो ये वैल्यू लॉग 0 पे चली जाएगी, तो हमें यहाँ सिर्फ pKa देखना होगा, और pKa की वैल्यू लॉग माइनस लॉग 10 पावर माइनस 4, तो बेटा हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, हालांकि इसको भी इजी वे में ही ले सकते हैं हम लोग, बट हाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें आपको ट्रबल फील हुआ होगा, बट कोई नहीं। हम यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन को टेकअप करते हैं, राइट। वी गो फॉर द नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आइए देखते हैं। द आईयूपैक नेम ऑफ द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 107 इज अननील सेप्टियम। बेटा 1 के लिए अन है, 0 के लिए नील है, 7 के लिए सेप्ट है, तो ये बिल्कुल भी सही कहा जाएगा। बोलो है कि नहीं बच्चा? हमें क्या ढूंढना है, ध्यान देना है इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट के केस में मैंने पहले कहा कि ज़्यादा अलर्ट हो जाना पड़ेगा। द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट species among magnesium Mg2+, aluminium and Al3+ are aluminium and Mg2+। तो बेटा लार्जेस्ट मुझे लगता है कि मैग्नीशियम को लेना चाहिए और स्मॉलेस्ट Al3+ को लेना चाहिए, तो यहीं पर हमें क्या मिल गया है? गलत स्टेटमेंट मिल गया है, राइट। तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं तो हम चेक कर सकते हैं। ये सही था, ये सही था, ये गलत था, ये हमारा ऑप्शन है। द सिमिलरिटी विथ बिहेवियर ऑफ लिथियम विथ मैग्नीशियम इज रेफर्ड एज डायगोनल। बिल्कुल ही, तो बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन दिस कंपाउंड इज 3 and 6। तो बेटा हम देखते हैं 2 चार्ज ऑलरेडी है, एक Cl अंदर है, वो बाहर जाएगा तो वो 3 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। और 5 वाटर कोऑर्डिनेटेड हैं और एक Cl, तो ये भी बिल्कुल सही माना जाएगा। तो बेटा हमारा सेकेंड ऑप्शन गलत था, जिसको हमने क्लिक कर दिया। वी गो फॉर द नेक्स्ट वन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ सोडियम, बेरिलियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम। बेटा मेटलिक के लिए सबसे ज्यादा मेटलिक कौन है बताओ? एल्कली मेटल्स, तो सोडियम ले लेंगे। उसके बाद कौन आएगा बच्चा बताओ? हमारे पास मैग्नीशियम आ जाएगा। बोलो क्लियर है? फास्फोरस और सिलिकॉन को तो मैं क्या मानता हूं बताइए? नॉन मेटल सीरीज में जाएंगे वो सब। और इसके बाद क्या मिलेगा? बेरिलियम। तो आइए देखिए हाईएस्ट सोडियम कहाँ मिल रहा है? 1, 2, 3 ऑप्शन में हमें हाईएस्ट सोडियम दिखाई पड़ रहा है, एक हट चुका है, अब इस पर बात करेंगे। अगला मैग्नीशियम लेना है। बेटा मैग्नीशियम यहाँ नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगला हमें लेना है बेरिलियम, और तो हम फर्स्ट ऑप्शन टिक कर देंगे। ओके बच्चा, तो हियर वी कंक्लूडेड कोड 12 केमिस्ट्री क्वेश्चंस फ्रॉम 66 to 80, राइट? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बात करते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री का 81 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आईयूपैक नेम पूछा गया है, जिसमें हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेन चेन है, इसमें 2 साइड चेन लगे हुए हैं। साइड चेन का जो पोजीशन है, दोनों साइड से अगर देखें तो दोनों साइड का चेन का जो पोजीशन है नंबर 3 एंड नंबर 3 पोजीशन पे है। तो नाम लिखा जाएगा इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 पोजीशन पे इथाइल अटैच है और 5 पोजीशन पे मिथाइल अटैच है, इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 आंसर नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं। इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को दिए गए लिस्ट में जो शेप या ज्योमेट्री दिया गया उसके साथ में हमको इसको मैच कराना है। मैच अगर कराना है तो देखा जाए यहाँ पे अगर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में प्लेटिनम जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कॉम्प्लेक्स बनाता है स्क्वायर प्लेनर। सेकेंड कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो स्ट्रक्चर फिक्स है कि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। NiCl4 की अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। और FeCO5 की अगर हम बात करें तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट का ऑप्शन जो होगा 3rd हो जाएगा।
सेकंड के ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट हो जाएगा, थर्ड के ऑप्शन की बात करें तो 4 होगा, और डी के ऑप्शन की बात करते हैं तो सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मैच करा करके अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में जो स्लोप दिया गया है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसके लिए हम लिखते हैं इक्वेशन R इक्वल टू R0 माइनस KT। अगर इस इक्वेशन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, y इक्वल टू माइनस mx प्लस सी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे अगर हम देखें R और R0 के बीच में, R और T के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो निगेटिव स्लोप के बाद आएगा। निगेटिव स्लोप जो होगा वो माइनस के की वैल्यू देगा। कहने का मतलब ये फॉलो कर रहा है जीरो ऑर्डर रेट काइनेटिक्स को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड की बात करें तो थायोसाइनेट, कहने का मतलब SCN माइनस इज एम्बीडेंटेड लिगेंड, जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन दोनों डोनर एटम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया एक इक्वेशन दिया गया है जिसके बारे में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन में पूछा गया स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में, जिसके केस में हमको डेल्टा G निकालना पड़ जाएगा। तो डेल्टा U की वैल्यू गिवन है, डेल्टा S की वैल्यू गिवन है। इस रिएक्शन के लिए अगर हम डेल्टा N गैस निकालें तो आ जाएगा -1, और यहाँ पर से सबसे पहले हमको डेल्टा H की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल्टा H0 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा U0 माइनस डेल्टा N गैस प्लस डेल्टा N गैस RT हमको लगाना पड़ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा U की वैल्यू किलो जूल में रखा गया है तो इसको जूल में कर लो, 10,000 जूल हो जाएगा। और प्लस डेल्टा N गैस की वैल्यू -1 है, -1 कर लो यहाँ पे। और इसके साथ अगर अब देखें तो R की वैल्यू रखेंगे 8.314 और T की वैल्यू 298 केल्विन। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -12477.5 जूल के बराबर। इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा, फिर से डेल्टा G निकालना था। तो डेल्टा G की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0 हमको सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पे वैल्यू जब रखेंगे -12477.5 माइनस T की वैल्यू होगा 298 और डेल्टा S0 की वैल्यू निगेटिव में दिया गया है, जूल में दिया गया है, उसको एज सच पुटअप कर देंगे तो इंटू -44 इसको सॉल्व करेंगे टोटल वैल्यू तो ये आ जाएगा 635 के आसपास कुछ आ जाएगा। और ये जो वैल्यू आएगा ये जूल में आएगा, किलो जूल में काउंट करेंगे तो 0.635 समथिंग आ जाएगा। और ये वैल्यू जो होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होने की वजह से जो रिएक्शन होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस आएगा। तो वैल्यू जो है पॉजिटिव में है, पॉजिटिव के साथ साथ नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब सेकेंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ओजोन दिया गया है। ओजोन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसके फॉर्मल चार्ज हर एक ऑक्सीजन एटम पे पूछ रहा है। इसको हम कैलकुलेट करने के लिए सिंपल इसके स्ट्रक्चर से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होगा। इसमें से क्या हुआ, इस ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर इसको डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। इसके पास 3 लोन पेयर, इसके ऊपर चार्ज होगा माइनस, इसके ऊपर होगा प्लस। इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया था जिसकी वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर के बारे में बात करें तो इसके बारे में लिखा है 1 है, ये 2 लिखा गया है और ये 3 लिखा गया है। यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन एटम पे कौन सा 2, 1, 3 के बारे में पूछा है। गलती हो सकती है कि 1, 2, 3 पे हम फाइंड आउट कर दें, लेकिन यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया गया है उसी के ऑर्डर में हमको फॉर्मल चार्ज के बारे में बताना पड़ेगा। तो नंबर 2 वाले पर अगर देखें तो 0 फॉर्मल चार्ज होगा, नंबर 1 ऑक्सीजन पे +1 होगा और नंबर 3 पे -1 होगा। मतलब आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो गिवन बिलो आर सर्टेन रिएक्शंस, आइडेंटिफाई द रिएक्शन फॉर विच Kp इज नॉट इक्वल टू Kc। Kp इज नॉट इक्वल टू Kc तभी हो सकता है जब डेल्टा N गैस की वैल्यू 0 ना हो। तो अगर यहाँ पे रिएक्शन नंबर 3 के बारे में बात करें, इसके लिए अगर डेल्टा N गैस निकालेंगे तो डेल्टा N गैस की वैल्यू आ जाएगा 2 - 4 यानी कि -2। और इसके लिए कभी भी Kp और Kc आपस में बराबर नहीं होंगे, मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो इज एन एक्सप्रेशन फॉर द
रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अकरिंग एट अ सर्टेन टेम्परेचर दिया गया, इक्वेशन दिया गया है। इसके लिए पूछ रहा है द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन किलो कैलोरी पर मोल फॉर द रिएक्शन इज, हमको निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी, वो भी किलो कैलोरी में। तो फाइनली अगर हम बात करें आर्हेनियस इक्वेशन की तो हम लिख सकते हैं ln k इक्वल टू ln a माइनस EA/RT। बस इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू लिखा गया है इसको इसके साथ मैच करा लो, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं EA/RT इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई लिख सकते हैं t से t कैंसिल हो जाएगा, और जो EA की वैल्यू आएगा 1.25 इंटू 10⁴, और यहाँ पे अगर देखें तो R को इस साइड ले जाएंगे तो R की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी कैलोरी पर मोल पर केल्विन में गिवन है, यही वैल्यू पुटअप करेंगे क्योंकि फाइनल आंसर हमको किलो कैलोरी में लाना है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे क्या करना है 1.25 इंटू 10⁴ और इंटू R की वैल्यू 1.987 रख के इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 2.484 इंटू 10⁴। इतना ये आंसर कैलोरी में आएगा, इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लोगे तो आ जाएगा 24.84, इतना किलो कैलोरी। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो द फॉलोइंग टू रिएक्शंस गिव द सेम फाउल स्पेलिंग। फाउल स्पेलिंग कहने का मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा तो इसका रिएक्शन कर रहा है X है और आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे जो रिएजेंट X की जगह पे दिए गए उनकी बात कर ले तो AgCN दिया गया है, KCN दिया गया है। KCN की अगर हम बात करते हैं तो KCN जो होता है आयनिक कंपाउंड होता है, K+CN- में टूट जाएगा। अगर इसके साथ रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। कहने का मतलब KCN वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, मतलब AgCN। कहने का मतलब फर्स्ट और 4 हो सकते हैं। अब देखा जाए कौन हो सकता है, तो इसका रिएक्शन अगर AgCN के साथ कराएं तो AgCN जो होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड होगा। कोवैलेंट कंपाउंड में नाइट्रोजन जो होगा डोनर होगा, नाइट्रोजन अगर डोनर होगा तो इसका C2H5Cl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, इससे फॉर्मेशन हो जाएगा C2H5Nc का आइसोसाइनाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। पहले वाले केस में इसका फॉर्मेशन करने का मतलब हम AgCN का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड वाले रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है। इसके रिएक्शन की वजह से C2H5NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा और एक कार्बाइल एमीन रिएक्शन है तो इससे फॉर्मेशन हो जाएगा C2H5NC का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर मैच कराएंगे तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। एक तरफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए गए हैं और दूसरी तरफ हमको यहाँ पे देखना है कि कौन से आइसोमेरिज्म वहाँ पे ऑब्जर्व हो सकते हैं। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सेकेंड की अगर हम बात करें तो ईएन थ्राइस है। इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कहने का मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे अगर देखें NO2 लिगेंड है। NO2 जो होता है एम्बीडेंटेट होता है। एम्बीडेंटेट कहने का मतलब जहाँ भी एम्बीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होते हैं वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब ये साल्वेट आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो फर्स्ट के साथ में अगर देखेंगे तो थर्ड होगा, बी के साथ में अगर देखेंगे ऑप्शन तो फर्स्ट के साथ में थर्ड हो जाएगा, बी के साथ में फर्स्ट हो जाएगा, और सी के साथ अगर हम देखें तो सी के साथ मैचिंग में जो आ रहा है 4 आ रहा है, और डी के साथ मैचिंग में अगर देखा जाए तो सेकेंड आ रहा है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर अगर मैच कराएंगे तो थर्ड, फर्स्ट, 4 और सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। तो एक कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन रहा आपके पेपर का आंसर की और कंप्लीट इसका PDF सॉल्यूशन, और साथ ही साथ लाइव स्ट्रीमिंग जो आपने देखा हुआ है, ये स्ट्रीम पूरा का पूरा नारायणा के वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप नीचे जा कर के लिंक से इसको देख सकते हैं। थैंक यू।